हमारे पास ये फैसल आप तो जानते होंगे ये अनबिलीवेबल टैलेंट है हमारे पास आइजक एंड रेयान। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोनों छोटे छोटे आप और इतना जबरदस्त? भाई आप यू गाइज आर टू कूल, you are too cool for us. Yes, you guys are amazing. But The tell way you are, me, you know, playing this tabla. ये क्या हुआ, कब हुआ और कब से चलता आ रहा है? खैर हम तो बहुत पहले से जानते हैं ये क्यों हो रहा है, पर हम नाजरीन को बताना चाहेंगे। Yeah, okay. So That's your camera. Basically, we started when Dad. Basically, we were in our Pampers, and Dad used to play the tabla. Because basically, वो गाड़ी के dashboard पे he would play the tabla sometimes. And then he started to learn the tabla. और जब उनको teacher सिखाते थे, तो we would just come and sit. He would dance. I would just start playing. So we were in our Pampers at that time. So when up to, but we didn't then play it. No, मतलब we were kids at that time, obviously. And जब COVID आया है, तो we were like, there's nothing to do. We're bored. तो मैंने अपने पुराने तबले निकाले. तो I was like, let's play it. And then we started learning the tabla professionally. And yeah. और दोनों भाई तबला ये मैं पूछने वाला था। क्या आपको आइजक को तो हुआ, आपको कैसे हुआ? मुझे भी ऐसे ही इसकी हुआ। भी same story. Yeah, we were in the same environment. Obviously, हाँ. So one question that you guys are what year were you born? I was born in 2009. 2012. Now, okay, I completely get it. Your father used to play tabla and dashboard and all, but you guys did not think of drums or getting into more electronic rhythm because you are new age kids. What intrigued you to go into tabla only? Okay, so yeah, that's a very good question, which is rarely asked. The reason I chose tabla was because it's a dying instrument. It's a dying art, and the thing is that because kids these days are going towards the western side. Sorry to cut you, but I'm really impressed by that you picking it up because it's dying. Otherwise, people pick up that jo chal raha hai bas wahi karna hai. You picked up something which was dying. That's a different wisdom, man. और फिर ये जो कौमी तराने पर जो बजाने का सोचा, ये कैसे? ये तो one day because हम तबला तो हमें आ चुका था more or less. So we decided यार हम अपने मुल्क के लिए कुछ बनाते हैं obviously. So we made the Qawmi Tarana. One day we're just sitting at home and Qawmi Tarana चल रहा है TV पे, and it was like wow. How amazing is that? और ये छोटी मोटी बात नहीं है, Pride of Pakistan का अवार्ड भी आपको मिला है. How was that? Oh, I felt like I was on top of the world at that time. Yeah. Okay, it was like it was something obviously big for us, and well, okay, the army was giving us something. That's right. तो वो स्कूल में अब मशहूर हो गए हैं और स्कूल में बच्चे कहते हैं ये फेमस किड्स हैं. स्कूल में तो वैसे कोई ऐसी लेफ्ट नहीं कराता because हम सब दोस्त हैं, so we don't care. Right. So what is next on the agenda? What is next on the agenda? Well, It has to be business. yeah. It has to be business. Yeah. By the way, we are actually doing business these days. क्या You know, है वो business? we recently went to London, and एक दिन because Dad was in Lahore, उनकी एक दिन वैसी call आई that why don't you join the Institute of Public Companies? And I was like, what's that? And then it was like it's like a business program, and Dad made it for us. Right. He and for everyone. So what it basically teaches us is how to run a public limited company. And when we came back to Lahore, we Continued it. we continued the program, and the next thing we know, we have established Cricket Republics Holdings Limited. इतने छोटे बच्चे इतने क्या बातें हैं भाई. डैड हम छोटे नहीं हैं. ऐसे डैड हर डैड Hey, don't get us wrong. अब छोटे नहीं है. हम No, छोटे मतलब नहीं we don't get अच्छा time. ठीक है, नहीं भाई छोटे उस्ताद, छोटे छोटे उस्ताद ठीक है. Yeah. सही है. फैसल, how important is it? जैसे कि रायन ने कहा कि
हमने वो डाइंग इंस्ट्रूमेंट को पिक किया। बहुत कम मेंटालिटी ऐसे बहुत घरों कम में है, स्पेशली आजकल के ज़माने में यू ओनली गो फॉर थिंग्स जो कि रेलेवेंट हैं। बिल्कुल। But that's why I was really impressed. And How do you think, what is Pakistan lagging? हमारे पास कहाँ है? इंस्टीट्यूट चाहिए हमें, कोई ऐसी स्कूल होना चाहिए हमारे पास जहाँ ऐसे बच्चे आए। ये तो they were lucky कि उनके घर का माहौल ऐसा था। देखें somehow शायद मेरी बात लोगों को बुरी लगे, लेकिन अगर आप वाकई देखें तो हमारे मुल्क में सब खुद ही कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर आज हम अरशद नदीम की बात करते हैं, बिल्कुल। जिसने एक ये 14 अगस्त का जज्बा जो है वो 4 नहीं 8-12 चांद कर दिया। बिल्कुल वो भी सेल्फ ट्रेंड है। बिल्कुल ऐसे। हमारे म्यूजिशियंस, हमारे एक्टर्स, हमारी वो सारे सब सेल्फ ट्रेंड हैं। तो क्या जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो मुझे लगता है पीछे रह जाते हैं। अगर हम खुद ना करें बिल्कुल तो आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। और मुझे तो इनको देख के अपना बचपन याद आ रहा है, बिकॉज माई फर्स्ट एवर परफॉर्मेंस वॉज ऑन 14th अगस्त हमारे गली के मोहल्ले में 1979। आई वॉज प्रॉब्ली 8 years old और गली मोहल्ले में वो 14 अगस्त का जश्न होता था और स्टेज लग के लोग परफॉर्म करते थे और नए नए जो सिंगर्स होते थे उनको मौका मिल जाता था कि चलो। तो मैंने भी 14 अगस्त के दिन जाके इसी तरह परफॉर्म किया था। यू गाइज आर लकी दैट यू गेटिंग अ टीवी प्लेटफॉर्म। आई गॉट अ नेबरहुड प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म इज अ प्लेटफॉर्म। सही। तो हमारे साथ दीगर गेस्ट भी है और अकेडमिक से बड़ी जबरदस्त यानी इंटेलिजेंट बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो उन्होंने ये तबला, म्यूजिक और सारी चीजें, और इससे पहले भी जो बच्चे थे उन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स में जैसा किरदार, तो अब ये बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये क्या करते हैं जरा ये बताइए। भाई दीज आर जीनियसेस। हमने आपको हर किस्म का हीरो का वादा किया था कि हम मिलाएंगे। हमारे पास एथलीट्स आए, हमारे पास ये अनबिलीवेबल म्यूजिशियंस है। आपको अभी हम जाने नहीं दे रहे, और भी जो कुछ आपने है ना। और अब हमारे पास एकेडमिया से वो सितारे हैं जो ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली उन्होंने जाके नाम रोशन किया है। तो ओलंपिक गेस्ट है जोहा आसिफ। बायो में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। जोहा बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन कराची स्टूडियो। इब्हाम अवान है, ब्रॉन्ज मेडल लिया है न्यूक्लियर साइंस में। ओ माय गॉड इब्हाम, अमेजिंग। तो भाई इब्हाम लाहौर से भी हमारे कुछ ऐसे ही सितारे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। हुज़ैफा हमारे साथ है, फिजिक्स ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है। और महाद आरिफ वो भी हमारे साथ है, उन्होंने कमेंडेबल परफॉर्मेंस रही है उनकी ओलंपियाड में। और उनके लीडर हैं डॉक्टर सरफराज। लाहौर से भी जो गेस्ट है अगर आप उनको दिखा सके जी उनसे कराते, तो यहाँ हम बात करते हैं। हम ये कैसे यू नो लाइक आई मीन इतनी सारी चीजों में से बायो कैसे? बेसिकली व्हाट आई गॉट स्टार्टेड इन लाइक माय ओलंपियाड्स वाज, मेरा भाई गया था मैथ के ओलंपियाड में, उसको बहुत शौक था मैथ के ओलंपियाड। सो आई वांटेड टू फाइंड समथिंग जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो जब मैं ऐसे ही ऑनलाइन कोर्सेज कर रही थी और पढ़ रही थी, सो आई फाउंड दिस वन जेनेटिक्स का बायोलॉजी का कोर्स MIT का आई थिंक ऑनलाइन, एंड सो आई एब्सोल्युटली फेल इन लव विद इट। सो ऑल आई वांटेड टू डू वाज biology and research or genetics, और बस फिर then I was like I want to give the paper, I want to go to the और कैसा लगता है कि जब आप इतनी सारी कंट्रीज में जब पाकिस्तान से आप नॉमिनेट होते हैं, आप सेलेक्ट होते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जज्बा, वो मौके के बारे में थोड़ा सा बताएं। It's an honor. Like when I found out I was on the team, it was just the best moment ever. I was so excited. I was running. I ran to my dad. इभान तुम बताओ कैसे? और न्यूक्लियर मतलब तो कुछ चूज ही नहीं किया ना आसान का। You should make the make nuclear bombs. नहीं वो हो चुका है, वो हम कर चुके हैं। और मगर इबाब कैसे न्यूक्लियर साइंस में कैसे आना, या शुरू से यू वांटेड टू डू दिस? तो प्राइमरीली मेरा शौक फिजिक्स में है एंड न्यूक्लियर फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ दैट। सो इनिशियली मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में जाऊं, जिसमें हुज़ैफा गया जो आया हुआ है, वो मेरा दोस्त है। तो क्या कहते हैं, उसी प्रोग्राम में मैंने हिस्सा लिया। उसका नाम है NSTC, नेशनल साइंस टैलेंट कॉन्टेस्ट। वो HEC और प्यास यूनिवर्सिटी का जॉइंट वेंचर है, उसमें से वो स्टूडेंट्स पिक करते हैं।
तो उसमें मैं पहुंच गया था टॉप 15 में फिज़िक्स के लिए, लेकिन मैं फ़िज़िक्स की टीम में नहीं हो पाया। लेकिन फिर पता चला कि एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड का होने लगा और इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो फिर उसके लिए फिर टेस्ट्स हुए और उसमें मैं चला गया टीम में, तो इसलिए मेरा वहाँ फिज़िक्स का भी दिल का वो पूरा हो गया। बिल्कुल। तो अब वो जो आपके फ्रेंड है लाहौर से, उन्होंने भी ज्वाइन किया, उनको भी उनको भी हम हेलो हाय करते हैं, तो हमें लाहौर स्टूडियो ले जाइए प्लीज। जी, डॉक्टर सरफराज टीम लीडर ऑल ओलंपियड चाइल्ड हमारे साथ मौजूद है, इसके साथ साथ हुजैफा हमारे साथ है और महाद आरिफ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको हमारी? जी, तो हुजैफा भाई आपके दोस्त तो यहाँ कराची में मौजूद हैं और वो भी बता रहे हैं कि आप भी इस ओलंपियाड में बहुत पार्टिसिपेट किया। क्या आपकी अचीवमेंट्स रही, क्या आपकी फीलिंग्स रही, प्लीज हमें बताएं। हुजैफा, आपको हमारी आवाज आ रही है? चले, अच्छा, हुजैफा को डॉक्टर सरफराज से बात करते हैं। आई थिंक लाहौर स्टूडियो में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम फिर दोबारा उनके पास आएंगे। अच्छा, क्या डू यू थिंक आपके पेरेंट्स ने आपको साइंस और बायोलॉजी और ये सारी बुक्स लाके दी तो शौक हुआ, ऐसा है? बिल्कुल ऐसे। डू टेल अ लिटिल। सो इनिशियली शुरुआत से माय मदर यूज्ड टू बाय मी एनसाइक्लोपीडियाज, जिसमें वो जनरल साइंस होते थे, उसमें फिजिक्स, बायो, केम सब कुछ मिलता था। लेकिन ज़ाहिर है मैं सिर्फ फिज़िक्स के चैप्टर्स पढ़ता था उसमें से। तो इस तरह दैट्स हाउ माय मदर हेल्प मी इन गेनिंग एन इंटरेस्ट इन फिज़िक्स। बिल्कुल। एंड फिर बाद में इट वाज माय ओन थिंग, देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग माय सेल्फ यूट्यूब पे। इस तरह फिर मैं ज़्यादा फिज़िक्स कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया और इस तरह मैं इंटरेस्ट बन गया। तो पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहती है? ये मेरा सवाल था माहब से। एजेंडा क्या है? रिसर्च करनी है, so that's where I want to go, like neuroscience actually. So neuroscience or genetics research. I heard कि पाकिस्तान में there's not a lot of clinical genetics. That's where like my field of interest is. नहीं तो ये करके बाहर तो नहीं चले जाना? यानी एक तो आपके इंडिविजुअल गोल्स है, पाकिस्तान के लिए क्या वापस आके करना है इस मुल्क की तरक्की के लिए काम? क्योंकि जब मुझे रिसर्च करनी थी तो मेरे पास इतनी सारी जगह नहीं थी रिसर्च करने के लिए जाने के लिए। सो आई वांट टू कम बैक एंड आई वांट टू रियली एस्टैब्लिश अ प्लेस जहाँ पे लोग बच्चे आके अपनी रिसर्च कर सकते हैं एज स्टूडेंट्स, मेरी तरह ए लेवल्स में या ओ लेवल्स में। अमेजिंग। तो रायन और आइजैक भी वो बिजनेस करना चाहते हैं। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे कोई डील बनानी चाहिए फॉर अ प्लेस फॉर स्टूडेंट्स, फॉर अनबिलीवेबल हीरोज लाइक योरसेल्फ, जो जहाँ एंटरटेनमेंट भी थोड़ा थोड़ा चलता रहे। वैसे तो बिजनेस आप कह रहे हैं, लेकिन हाँ एंटरटेनमेंट से ज्यादा क्या, यानी और क्या इसके अलावा क्या कुछ करते हो? जी, मैं आई प्ले द ड्रम्स एक्चुअली। देखा मैंने सही सवाल किया। हाँ, वरना एक ड्रम सेट भी होता है इधर। तो बताना चाहिए जरा यार। तो ड्रम्स करता हूँ मैं वैसे फन के लिए, और आई ऑल्सो स्केच एंड डू आर्ट। तो मेरा आई लाइक बोथ आर्ट्स एंड साइंस। तो वो ताल और वो जो उसमें तो आप हैं, ड्रम करते हैं तो ताल तो है, तो सुर भी है, सिंगिंग भी? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा भाई ये देख लें, हमारे पास अनबिलीवेबल टैलेंट है, तबला भी है और ऐसा टैलेंट है हमें भी नहीं पता। अभी हम बात कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि यार ये तो देखें क्या बात है, ड्रमर भी है। जबरदस्त जबरदस्त। तो कुछ गुनगुना लिया जाए फैसल, अगर आपसे हम रिक्वेस्ट करें, और तबले से भी हम हमारे हीरोज हैं, सिंक हो जाएगा। मैं एक इस मौके पे, क्योंकि हम 14 अगस्त है, मैं फिर एक वो गाना ऐसे ही गुनगुनाता हूँ जो एक ही बार मैं गाया। अच्छा। That was my first song on TV. अरे वाह। And that was a national song. जबरदस्त। मुझे सिंधी आती नहीं, लेकिन गाना मैंने सिंधी में गाया। ये कैसे? क्या बात है। 1980 was the time, and my first debut on TV. So the song goes like. ईदेस प्यारो प्यारो, ईदेस आहने आरो, सोनो सच्चो सुहारो, दुनिया में नाले वारो,
शाद रहे आबाद रहे ईदे। क्या बात है, मुझे अभी पता नहीं हो सकता गलत मैंने लफ्ज बोले हूँ, बट या माय फर्स्ट सॉन्ग बहुत अच्छा है। सिंध जी धरती सोनी धरती और सिंध जा वासी मेहमान नवाज। ऐसे ही तो है, ये तो ऐसे कहते ही हैं ना। भाई हम आइजक और रायन से कहेंगे कि कुछ प्ले करें जिसके साथ हम भी गा सकें, कोई हाँ, ऐसा चलें। मिली नगमा। कोई ऐसा आसान सा कुछ। हाँ I have no clue. Honestly, आपको बताना ये होगा। देश हमारा है या दिल दिल वतन पाकिस्तान की करते हैं, दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान, ये वतन हमारा ये करते हैं, वतन बिल्कुल हमारा ऐसे ही। है। Yeah, okay, so हम गाएंगे, आप we'll do बजाएं। that. Okay. Okay, we can do that. पीछे म्यूजिक चल सकता है? पीछे म्यूजिक चल सकता है, नहीं चल सकते। नहीं चल ये इस पे अगर हम कुछ आप कर सकें तबले से अगर तबले हम से। करें और हम गाएं साथ आप या सोनी धरती का है। सोनी धरती गाते हैं, Yeah. ठीक है। है ना, सोनी धरती इज नाइस। चले जी। What we can do is that we can give you the beat Yeah. and then you can. चले वी कैन जॉइन Okay. यू, मगर आपको भी गाना है गाना हमारे है साथ, आपको। ओके? लिरिक्स तो बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान से मिलके मोहब्बत का गाएंगे। इजहार हो रहा है ना, तो ठीक है ना। बिल्कुल। आप repeat करें। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखे आबाद, हम देखे आजाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे। क्या अमेजिंग भाई। तो एक भाई, ब्रेक लेना है हमने। हम हाँ, छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, इतने मजे का माहौल बना हुआ है, एकेडमिक्स, स्टार परफॉर्मर्स, हीरोज और जुहेब। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे, इसका नाम बुलंद करते रहेंगे, इस परचम को थामे रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है ना, विल बी राइट बैक।